دیکھیں اشارہ بانی کی ترتیب کی کتاب. خداوند تمہارے ساتھ ہو. ہم دعا مانگیں. اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا،
اے قدوس خدا، سنو اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں، کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راستہ باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خداوند کی ہم دو تعریف کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 450 ہے، ہوا چھوٹ جانا ہے یسوع نے جدوں آنا ہے۔ کوائر کے ساتھ مل کر خداوند کی بدہ سرائی کریں گے۔ گیت نمبر 450 ہے۔
کھڑے ہو کے دعا کریں، شکر گزاری کریں، خاص طور پہ ارنسٹ مل کو یاد کریں، خدا کے خادم کو۔ یہ گیت انہوں نے سکھایا تھا ہمیں۔ پرستش میں جو تبدیلی آئی، جو نوبلٹی آئی، انوکھا پن آیا، ان کی وجہ سے آیا۔ گیت ہمارے لیے لکھے اور دعا کریں کہ خداوند ہمارے ملک پر رحم کریں، کیونکہ گزرے 2 دن ہمارے شہر کے داخلی خارجی راستے بھی بند تھے، اسلام آباد کے راستے اب بھی بند ہیں۔ تو جو لوگ ملک میں بدعملی کرتے ہیں، خدا انہیں عقل، دانش اور فہم عطا فرمائے تاکہ ملک میں امن، سکون اور سلامتی ہو۔ دعا مانگیں۔ باپ بیٹے قدس کے نام سے آمین۔ قدوس قدوس لشکروں کے رب زمین اور آسمان کی خداوند، ہم دل کی گہرائی سے شکر کرتے ہیں یا رب کہ تم نے ہمیں موقع بخشا، یہ خوبصورت دن ہماری زندگیوں میں عطا کیا یا رب۔ اے باپ، تم نے اپنے گھر آنے کا موقع بخشا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایک جان کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ اے پیارے یسوع ناصری، تمام تک تم نے ہمارے گزشتہ دنوں میں حفاظت اور نگہبانی کی تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے باپ، ہمارا مل بیٹھنا، تیرے نام کو مبارک کہنا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ اے باپ، ہم تیرے خادموں کو یاد کرتے ہیں باپ، جنہوں نے تیرے حضور خدمت گزاری آ رہا، تیرا شکر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے باپ۔ اے باپ، شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس موقع کے لیے تو نے ہمیں بخشا یا رب۔ تیری سلامتی ہم پر نہیں، ہم تیرا شکر عطا کرتے ہیں یا رب۔ اے پیارے خداوند، ملک کے حالاتوں کے لیے دعا کرتی ہوں، حفاظت اور نگہبانی ایک ایک کو عطا کرنا، عقل دانش کرنا عطا کرنا، اپنا کرم کرنا اور بڑی برکت بخشنا۔ مسیح یسوع کے نام سے ہم اس دعا کو مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ یہ گیت لکھا پادری اسکل سروش نے۔ تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے۔ تیری خوشی، تیرا مسا میرا زور ہے، تیری بادشاہی کا یہ کیسا شور ہے۔
ख़ास तौर पे दुआ मांगते हैं मिसेज़ शगुफ्ता महमूद मलिक के लिए, नौशीन इमैनुअल के लिए, मिसेज़ मार्था इमैनुअल के लिए, मिस्टर मिसेज़ गुड्डू हकीम के लिए और मिस्टर मिसेज़ अर्नेस्ट जॉन के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, मिस्टर नईम बरकत के लिए, शहनाज के लिए, मिस्टर महमूद भट्टी के लिए, कैसर के लिए, ताकि खुदावंद इन सबको अपनी पनाह में रखे, और उन ख़ानदानों के लिए जिन ख़ानदानों में पिछले दिनों गमगीनी आई, खुदा उन सबको तसल्ली इत्मीनान अता फ़रमाए। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद हम सब पर रहम करे, इस मुल्क पर रहम करे, अपने खादिम पास्टर जेफ पर अपने पाकरू की रहनुमाई अता फ़रमाए, ताकि जब वो आज खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें, उस कलाम के वसीले से हम में से बहुत सारे लोग शख्सी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर हलाकत से बचें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। चंद अल्फाज में कोई भी दुआ कर सकता है, जो नहीं करते वो करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। कोई भी कर सकता है, आज़ादी। प्यार से बड़े हुए बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे कदम चूमते हैं, तेरे नाम को मुबारक करते हैं। तू बाकी कादर और रहीम और सच्चा सन बाप है। हम दिल की गहराई से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। दुनिया से तूने ऐसा प्यार किया, तूने अपने प्यारे बेटे को नीचे भेज दिया, जो कोई मान लाए अल्लाह ना करके बेटे की जिंदगी पाए। इस जवाब के लिए जितने लोग प्यार करते बड़े तेरे करते हैं, इन सब को अपने पाप और दुख से बचाता, हर दुख तकलीफ हर मुसीबत से बचा करूँगा। तेरे नाम को जला दे सके, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए प्यार से तेरे शुक्रगुजार है। कोर्ट के लिए हम आदमी की बात के लिए मैं खासा चाहता हूँ। हम अपनी जान कर दे, अपना कर्म कर दे, खुद कर दे, परेशानियाँ तकलीफ सब सुना तेरे नाम से लगी है। तेरा पाप तत्व इसको तो छः चार में लग चुका है। अपने खादों के लिए, इनकी पूरी फैमिली के लिए मैं खासा चाहता हूँ। हम जो खादों आज लड़ते हैं, इनको सिख वालों से पोते को दुआ करना चाहता हूँ। इनके मुँह में पाप काम था, इसलिए आखिर अगर जो पुछते मिले और हमारी जिंदगी पहुँचते और तेरे नाम को जलाल करते। इस बीच से चाहते तो जो तुमसे नाम दिया है, तूने दे दिया है, बाल तो तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा की यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। आज हम सब की नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। आज का पहला विर्द जिस पे खुदा उनके खादिम नजात का पैगाम आपको देंगे वो है पहला सैमुएल 2 बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत। ये हवाला जिनके पास्टर जेफ इस पे बोलेंगे और ये हवाला मैं पढ़ूँगा। और आज का जो दूसरा विर्द होगा वो तीमुथी के खत का होगा। भाई मैनुअल आप पढ़ेंगे हवाला, ये बाइबल पढ़ी है। पहला बाब, ठीक है। खुदा के खादिम इस पे बोलेंगे और आज का जो दूसरा विर्द होगा, अभी आप बैठ के निकालें हवाला, बाद में मैं जब आपको दावत दूंगा फिर आपने आना, ठीक है। दूसरा वाला है 2 तीमुथियुस के दाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त है, दूसरा ही बाब है, 8वीं आयत से 15वीं आयत। तसल्ली से
दूसरा तिमोथियस, भाई मैनुअल दूसरा तिमोथियस है जी। जब मैं कहूँगा फिर आपने ये हवाला पढ़ना है, ये हमारे गेस्ट हैं इसलिए हम इनकी शुक्रगुजार हैं। दूसरा तिमोथियस सफ़ा नंबर 206 जो बाइबल आपके पास मौजूद है नीचे, दूसरा बाब 8वीं आयत से 15वीं आयत। दूसरा तिमोथियस यानी तिमोथियस के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ये दूसरा ख़त है और दूसरा बाब है और 8वीं आयत से 15वीं आयत हम पढ़ेंगे अपनी नसीहत के लिए जब मैं दावत दूंगा आप लोगों को। फिर इसके बाद हमने एक गीत गाना है इस हवाले के बाद। वो गीत है 433, बरकत दे यीशु बरकत दे। ये हम गाएंगे क्वायर के साथ तिमोथियस के ख़त की रीडिंग के बाद। और फिर हम हवाला सुनेंगे इंजील मुक़द्दस का। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 17वां बाब चैप्टर 17 वर्स 11 to 19, 11वीं आयत से 19वीं आयत। मिस एलिज़ाबेथ आप ये पैसेज हमारे लिए आगे आके तिलावत करेंगी। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 17 बाब 11वीं आयत से 19वीं आयत। आज सुबह ये हमारी नसीहत के लिए 3 हवाले होंगे। अब सब लोग दोबारा सुनेंगे। पहला हवाला है पहला शमूएल पहला बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत। और फिर हम तिमोथियस के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त दूसरा बाब 8वीं आयत से 15वीं आयत हमारे भाई मैनुअल प्रोएज ये हमारे लिए तिलावत करेंगे। और फिर हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 433। और गीत के फ़ौरन बाद हम मिस एलिज़ाबेथ के वसीले से इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। लूका 17 बाब 11वीं आयत से 19वीं आयत तक। चूँकि आज सुबह हमारे पास गेस्ट हैं, हम उन्हें भी थोड़ी देर तक वेलकम करेंगे। मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बग़ैर किसी बहुत ज़रूरी काम के शहर से बाहर अभी 1-2 दिन ना जाएं, ठीक है? ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। और ख़ास तौर पर बच्चों से, नौजवानों से। नौजवान परवाह नहीं करते, लेकिन हमें एहसास है कि हमारे बच्चे किसी मुश्किल का शिकार ना हों, क्योंकि जो गुज़रे दिन थे उनमें जो 10 अक्टूबर का दिन था वो आलमी सतह पे यौम सेहत का दिन मनाया गया। और आप लोग अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि आजकल जो कुछ हम खाते हैं कोई भी एक भी चीज़ खालिस नहीं है। अगर आपको खालिस कोई चीज़ मिलती है ना, वो खुदा का कलाम है जो हम खुदा के खादिम आप तक लेके आते हैं, तो इसको ज़रूर सुना करें। आलमी सतह पे यौम सेहत का दिन था और उसी दिन बेघर अफराद का आलमी दिन था, जिन लोगों के पास घर नहीं है। कभी आपने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास घर नहीं, किराए के घरों में तो हैं, सभी लोग रहते हैं, लेकिन घर नहीं है। मैंने इंडिया में देखा लोग ये जो बड़े बड़े पाइप नहीं होते जो सीवरेज लाइन में डालते हैं, उनमें रहते हैं। मैंने चबुर्जी के करीब देखा, अब तो उन्होंने ज़रा अच्छी तरह बना दिया राउंड। लोग फुटपाथ पे नीचे पार्कों में सोए होते थे, उनके पास छत नहीं होते थे। सो हम बेघर लोगों के लिए भी दुआ करते हैं, खुदा उन्हें अपने घर अता फरमाए। और आलमी सतह पे यौम बसारत का दिन मनाया गया। बसारत क्या होती है? हाँ जी, दोबारा आप शुक्र किया करें, खुदा ने आपको आंखें दी हैं, आप देख सकते हैं। जिन लोगों को आंखें नहीं दी या जो देख नहीं सकते, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। और अपने लिए शुक्र किया करें कि खुदा ने मुझे और आपको देखने की ये नेमत दी है, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। 15 अक्टूबर का दिन, आने वाले दिन, यौम में तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी। सफ़ेद छड़ी देखिए कभी किसी ने? रोड पे जाते हुए जो लोग देख नहीं सकते, उनके हाथ में एक स्टिक होती है, छड़ी होती है,
وہ سفید ہوتی ہے تاکہ دیکھنے والا آنے والا سمجھ جائے کہ یہ شخص دیکھ نہیں سکتا اور میں نے اس کی کیا کرنی ہے، میں اور آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، پھر خدا میری اور آپ کی بھی مدد کرے گا۔ پھر اسی دن 15 اکتوبر کا دن ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے۔ اس کے 2-3 مطلب ہیں ہاتھ دھونے کے نا۔ ایک تو ہم ہاتھ دھوتے ہیں نا صفائی کے لیے نا، اپنے ہاتھ کھانا کھانے کے لیے یا دوسری جگہ۔ ایک کہتا ہے بھائی میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں اس کام سے۔ کوئی بائبل کا حوالہ یاد آتا ہے آپ کو جب یسوع مسیح پکڑوائے گئے؟ ہاں جی، اس نے ہاتھ دھوئے تھے کہ میں اس گناہ سے بری ہوں۔ یہ دن اس لیے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ ان دنوں کے لیے دعا کریں۔ عالمی یوم خوراک کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ 16 اکتوبر کو پوری دنیا میں یہ دن منایا جائے گا کیونکہ آبادی زیادہ ہے، خوراک کم ہے، اور چند آنے والے مہینوں میں اور زیادہ ہمارے ملک میں مشکل ہوگی، کیونکہ جہاں پہ اناج کی پیداوار ہو رہی تھی وہ اناج کے سارے کھیت سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے، خدا ہر شخص کو زندہ رہنے کے لیے خوراک مہیا کرے تاکہ ہر شخص جو زندگی رکھتا ہے اس دنیا میں، خدا ہمیں کھانا زندہ رہنے کے لیے دیتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم زندہ ہی کھانا کھانے کے لیے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے ہم نے تاکہ دوسروں کا حصہ نہ لیں۔ سو آج کا دن جو خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں دیا ہے، ہم اس دن کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، اور میں آپ سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ جو لوگ گیلری میں بیٹھے ہیں میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ 18 سیڑھیاں چڑھ کے پھر اوپر جاتے ہیں، تو جو لوگ پہلے آ جاتے ہیں وہ اچھے طریقے سے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے اگر ٹائم پہ آئیں گے تو آپ آگے بیٹھیں گے۔ آپ سب کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو ویلکم کریں، ٹھیک ہے؟ پھر کلام مقدس کی تلاوت کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو بھائی شامل، بھائی پریز مینر، آپ کو شکر گزار پائیں۔ میں کہوں گا کوئی ایسا بھائی جو پہلی دفعہ ہمارے ساتھ عبادت کر رہا ہے، آپ تو ہاتھ دکھا سکتے ہیں ہمیں دیکھ کر؟ مبین صاحب آپ آ جائیں۔ کوئی آنا چاہتا ہے؟ مینیجر آپ آ جائیں۔ کوائر کی طرف سے یہ مالا یہ ویلکم کریں۔ جی آگے شامل آپ بھی آ جائیے۔ شباد آپ آئیں، شباد بولو کہ اوکے ہم نے دے دیے، یہ مالا ان کے گلے میں ڈالیں، ان کو ویلکم کریں گے عیشا کی طرف سے۔ بھائی شامل پیارا اور بھائی یہ دونوں مائنارٹی جو رائٹس ہیں ہمارے، ان کی امپلیمنٹیشن جب نہیں نہ ہوتی، ان پہ عمل نہیں کیا جاتا، تو یہ دونوں بھائی اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو مسیحی لوگ مشکل کا شکار ہیں ان کی مدد کی جائے۔ چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی تک، سپریم کورٹ تک جانا ذرا مشکل کام ہے، تو ہم ان دونوں بھائیوں کو ویلکم کرتے ہیں، ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ آج جہاں پر ہیں ان کی خدمت کے لیے کبھی کبھار وہ ہمارے لیے خطرہ بھی مول لے لیتے ہیں، تو اپنے لوگوں کی مدد کرنا، وہ کئی دفعہ ہم ان کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، پھر ہمیں وہ تنقید کرتے ہیں اور الزام لگا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کو بھی چھوڑتے ہیں، خطرے میں چلے جاتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے۔ سو ہم ان دونوں بھائیوں کی محنت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آج کا آنا ہمارے خاندان سینٹ جان چرچ کے خاندان کے ساتھ مل کر دعا کرنا
اور خدا کے خادم کو ساتھ لانا، کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک انداز ہے خدا کا کلام سنانے کا۔ نجات کا پیغام، محبت کا پیغام، سلیب کا پیغام میرا اپنا انداز ہے، پادری سشیل کا اپنا، اور پاسٹر جیف کا ایک اپنا سٹائل ہوگا، اور آپ برکت پائیں گے۔ آئے ہم کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں۔ تو حنا اٹھی، اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دلگیر تھی حنا۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت کی، اور منت کیا تھی؟ اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے، اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے، اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کروں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آج کا دوسرا وعد، دوسرا تیموتھیوس، بھائی مینول آپ پڑھیں گے آگے۔ یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا اور داؤد کی نسل سے ہے، میری اس خوشخبری کے موافق جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید ہوں، مگر خدا کا کلام قید نہیں۔ اسی سبب سے میں برگزیدہ لوگوں کی خاطر سب کچھ سہتا ہوں، تاکہ وہ بھی اس نجات کو جو مسیح یسوع میں ہے ابدی جلال سمیت حاصل کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔
मरकूम है। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसको सजदा करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। होकर आजिज़ी इनकसारी हलीमी फ़रोतनी के साथ तेरे खादिम पास्टर जैफ के लिए दुआएं खैर करते हैं। तेरा हाथ तेरे बंदे की तरफ बढ़े, अपना कलाम उसके मुंह में दे, पादरी सुशील को अपनी पनाह में ले, ताकि जब वो उसकी ज़बान बनता है, उर्दू में तर्जमा करता है, अल्फाजों की तरतीब अता फरमा, ताकि हम सब आज के कलाम के वसीले से रूहानी ताज़गी हासिल करें। खुदा बाप, बेटे और उनके नाम से। जमायत बैठ जाए। मैं आप सब की तरफ से विशे वेरी वार्म वेलकम टू आवर डियर फ्रेंड रेवरेंड जेफ from USA. Please come forward, deliver the message. May God bless you, encourage you, and use you. Hallelujah. It is so good to be with you today. मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। I bring you greetings from the United States. मैं अमेरिका से आपके लिए नेक ख्वाहिशात का लेके आया हूँ। I am the pastor of Word of Life International Church. I'm the pastor of Word of Life International Church. मैं पास्टर हूँ वर्ल्ड ऑफ लाइफ चर्च का। My church is a little different than this church. मेरी कलीसिया है वो आपकी कलीसिया से थोड़ी मुख्तलिफ है। Looks like everyone here is from Pakistan. इधर लग रहा है कि सारे पाकिस्तान से ही हैं। But the church I pastor has people from all over the earth. लेकिन जहाँ पे मैं खिदमत करता हूँ वहाँ की जो कांग्रेगेशन है, वहाँ की कलीसिया वो मिक्स्ड है। We have lots of Africans. हमारे उधर कलीसिया के अंदर बहुत से अफ्रीकी लोग हैं। Lots of Asians. एशियाई लोग हैं। Middle Easterns. मशरक़ वस्ता से आए हुए लोग हैं। South America. साउथ अमेरिका से आए हुए लोग हैं। We're from all over the world. सारी दुनिया से आए हुए लोग हैं मेरी कलीसिया में। And so I bring you greetings. मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार आपके साथ करता हूँ। In my church on Sundays, मेरी कलीसिया में इतवार के रोज़ we have 5 services. हम 5 इबादत मुनक़िद करते हैं। We have 2 in English, 2 अंग्रेज़ी ज़ुबान में होती हैं, 1 in Spanish, एक स्पेनिश में होती है, 1 in French, एक फ्रेंच में होती है, and 1 in Urdu. और एक उर्दू के अंदर होती है। I have always loved the Pakistani people, मुझे पाकिस्तान के लोगों से बहुत प्यार है। with many of them in my church. बहुत से पाकिस्तानी मेरी कलीसिया के अंदर भी हैं। And so it's an honor to be with you today. मेरे लिए बाइस फख्र की बात है कि मैं आज आप लोगों के दरमियान हूँ। I want to share a word with you that's in my heart from 1 Samuel.
मैं आपके साथ पहला शमूएल में से खुदा का कलाम जो है वो शेयर करना चाहूँगा। Tells the story of Samuel and his mother Hannah. इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें कहानी मिलती है हन्ना की और उसके बेटे शमूएल की। The Bible tells us about Samuel and Hannah, and Hannah was married to a man named Elkanah. इसके अंदर हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो शादीशुदा थी Elkanah had 2 wives. और जो उसका खावत था उसकी 2 बीवियां थी। He had Hannah and Peniel. एक हन्ना थी और दूसरी बिनाइल थी। Benaiah. So he had 2 wives. उसकी 2 जो है बीवियां थी। Peninnah had children, पहली जो बीवी थी उसके जो है वो औलाद थी, but Hannah had no children. लेकिन हन्ना जो है वो उसकी औलाद कोई ना थी। Hannah was frustrated. हन्ना जो है वो मुश्किल में थी और परेशान थी। She was comparing herself to Peninnah. वो हन्ना जो है नायना को जो है देख के उसके साथ अपने आप का मुशावरा कर रही थी। Many times in our lives we compare ourselves with other people. जिंदगी के अंदर हम भी जो है एक दूसरे को देख के उसके साथ जो है हम करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने आप को। Peninnah had children, Hannah had no children. नाया के पास बच्चे थे और हन्ना के पास बच्चे नहीं थे। And some of the biggest problems in our lives is because we compare ourselves with someone else. और हमारी जिंदगी के अंदर जो मुश्किलात है उसका एक सबब ये है कि हम अपने आप को दूसरों के साथ मुशावरत देते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। Many times depression lives और के अंदर डिप्रेशन आ जाता है because we see someone else's life and we wish we had our life was better. हम किसी को देख के कहते हैं यार काश मैं इसकी तरह होता, या इसकी जिंदगी जो है वो अच्छी है हमारे से। And so Satan will use that against us और यही जो तरीका कार है ये शैतान यूज करता है to cause us to be depressed. और ये शैतान हमारे लिए यूज करके हमें इस्तेमाल करता है और इसी तरह हम डिप्रेशन में चले जाते And हैं। so Hannah was upset. हन्ना जो है वो परेशान थी। I want you to think about this. Never evaluate success by what you have or by what you don't have. अपनी जो सक्सेस है उसको इस तरह से कंपेयर ना करें कि आपके पास क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है। She didn't have children, हन्ना के पास औलाद नहीं थी, but she had a husband. बस उसके पास जो है खावन था। She had a relationship with God. उसका खुदा के साथ रिश्ता बड़ा मजबूत था। So I want to encourage you, do not compare yourselves with others. मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने आप को दूसरों के साथ तशबीह मत दिया करें। You're successful because of who you are, not because of what you have. आप जो हैं इसलिए कामयाब है क्योंकि आप वो हैं जो आप हैं, दूसरा नहीं है उस तरह का। Verse number 7 tells us 7वीं आयत के अंदर लिखा है that Hannah came to the temple year after year after year. और इसमें लिखा है कि वो चूंकि साल बा साल ऐसा ही करती रही, वो हर साल आती थी। Every year the same thing would happen. हर साल वो आती थी और आके यही दुआ करती थी। She would go to the temple and she would pray for a child. वो आके खुदा के आगे यही दुआ करती थी कि उसे औलाद हो। And every year she would walk away depressed. और हर साल वो परेशान होके वापस चली जाती थी। Every year she would come with her problems. हर साल वो अपनी मुश्किलात लेके खुदा के हुजूर आती And थी। it seemed like her life was a continual struggle. और ये लगता था कि उसकी जो जिंदगी है वो मुश्किलात का शिकार है, मुश्किलात से निकल ही नहीं रही। Peninnah has children and I don't have children. दूसरी बिनाया के पास बच्चे हैं और मेरे पास कोई औलाद नहीं है। We have to trust God's timing. हमें खुदा की टाइमिंग के ऊपर, उसके औकात के ऊपर जो है वो ट्रस्ट करना है। And so Hannah had a problem. हन्ना की ये मुश्किल थी। Many of you have problems. आपकी भी मुश्किलात होंगी। Many of you have been frustrated year after year after year. आप भी साल ब साल इसी तरह किसी मुश्किल में या तकलीफ में होंगे जो हल नहीं हो रही होगी। There are some problems that have like a cycle. They happen over and over again. कुछ मुश्किलात हैं जो चलती रहती हैं, साइकिल की तरह होती है, एक के बाद एक, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे चलती है। Year after year Hannah would come to the temple. साल ब साल हन्ना आती थी, खुदा के हुजूर आती थी She would seek after God. और खुदा से पूछती थी और दुआ करती थी। But this year that we're talking about today in verse number 9, और अभी हम देखते हैं कि 9वीं आयत के अंदर लिखा है कि जब वो इस दफा खुदा की हैकल के अंदर आई, it says that Hannah, after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. हन्ना खाने पीने के बाद जब फारिग हुई तो आके उसने दुआ की। Eli the priest was sitting at his customary place beside the entrance of the tabernacle. और एली काहिन उधर बैठा हुआ था। Hannah was in deep anguish.
हना काफी मुश्किल में थी, परेशानी में थी, She was crying bitterly as she prayed to the और Lord. वो ज़ारों कतार हो रही थी. She was feeling the emotions of having no children. वो ये देख रही थी कि उसकी कोई औलाद नहीं, इसलिए वो परेशान थी. And so she began to pray a prayer. इसलिए उसने दुआ करना शुरू की She felt deeply emotional about this problem. और वो जज्बाती हो के दुआ करने लगी. Some of you have had problems that have been like a cycle over and over and over in your lives. आपकी जिंदगियों में भी मुश्किलात होंगी जो चलती आ रही होंगी, खत्म नहीं हो रही होंगी. And at some point you've got to begin to cry out to God. लेकिन एक वक्त ये है कि आप उस सारी मुश्किलात लेके खुदा के हुजूर आएं और उससे दुआ करें. Hannah was feeling deep pain on the inside of her. और हन्ना जब दुआ कर रही थी तो अंदर से वो उसको जो है फील कर रही थी, दुआ कर रही थी. She had felt it every year, हर साल वो यही एक्सपीरियंस कर रही थी. but this year was different. लेकिन ये साल उसके लिए मुख्तलिफ था. This year she said, I've got to do something. इस साल उसने कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा. This year she said, I'm not just going to go to the temple and do what I always do. इस साल उसने हन्ना ने ये कहा कि इस साल मैं हैकर जाऊंगी तो वो कुछ नहीं करूंगी जो मैंने पिछले सालों में किया, कुछ नया करूंगी. I'm overwhelmed with grief. मैं मुश्किल के अंदर हूँ, मेरा दिल भारी है. And so she began to pray. और वो भारीपन से उसने दुआ करना शुरू किया. She cried bitterly to the Lord. और वो ज़ारों कतार खुदा के आगे रोने लगी. Sometimes you've got to let God feel your emotions. कभी कभार हमें चाहिए कि हम भी जो हमारे दिल की हसरत है वो खुदा के आगे हम खुदा के ज़ोर अपनी मन्नत रखें. It's okay to express your emotions to the Lord. और ये बिल्कुल जायज़ बात है कि अपने जो जज्बात है खुदा के आगे हम उन्हें वाज़ेह तौर पे रखें. He understands all of our emotions. वो हमारे दिलों के हालों को जानता है. And so she began to pray. और हन्ना ने दुआ शुरू की. The Bible says her lips were moving, but nothing was coming out. बाइबल हमें ये कहती है कि उसके होंठ तो है मूव कर रहे थे लेकिन कुछ निकल नहीं रहा था. Hannah began to pray a passionate prayer. और उसने दिल की गहराई से दुआ शुरू की. And in this prayer she made God a promise. और इस दुआ के अंदर उसने खुदा से एक अहद बांधा. She said, God, if you will give me a son, उसने कहा कि अगर तू मुझे औलाद नरीना देगा I will dedicate him to you. तो मैं उसे तेरी खिदमत के लिए सर्व कर दूंगी. Her prayer was not very professional of a prayer. उसकी कोई दुआ कोई बड़ी फैंसी या प्रोफेशनल किस्म की नहीं थी. She became very emotional with God. वो जज्बाती होकर दिल की गहराई से उसने ये दुआ की. And so she began to cry out with all of her heart. और वो दुआ के अंदर रो पड़ी. And even Eli the priest, और एली काहिन भी. he looked at her and he thought she was drunk. एली काहिन ने भी जब उसकी तरफ हन्ना की तरफ देखा तो उसने समझा कि ये शायद अपने होश में नहीं है. He said, have you been drinking? उसने हन्ना से पूछा कि तू होश में है? I see you crying. मैंने तुझे रोते हुए देखा. I see your lips moving, but you're not saying much. मैंने तेरे होंठ चलते हुए देखे लेकिन कोई अल्फाज नहीं थे सुने. And the man of God spoke to her. और खुदा के बंदे ने उससे कहा. Sometimes prayer doesn't look very nice. उसने कहा कि दुआ कभी इस तरह से मानी नहीं जाती. Her prayer was weeping. लेकिन उसकी जो दुआ है वो ज़ारों कतार तुम रो रही थी. Her prayer was passionate. उसकी जो है दिल की गहराई से जो उसने दुआ की वो थी. And then Eli has a proclamation. फिर एली काहिन ने उसे कहा. He asked her, have you been drinking? And she says no. एली काहिन ने उससे पूछा कि तू होश में है? And she says, कहा नहीं. in verse number 14, she says, I was pouring out my heart to the Lord. और 14वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि अन्ना कहती है कि मैं अपना दिल खुदा के आगे रखता. I want to challenge you in this church building today. और मैं भी ये चैलेंज आप इस कलीसिया के आगे रखना चाहता हूँ. Those problems that have been happening in a cycle over and over again, कि जो मुश्किलात का सामना आप कर रहे हैं, begin to pour your heart out to the Lord. अपने दिल खुदावंद की तरफ लगाएं, अपने दिल से दुआ करें. And then as she's pouring her heart out to the Lord, she says to the priest, don't think that I'm a wicked woman. और उसने एली काहिन को कहा कि ये मत सोच कि मैं एक खराब औरत हूँ. I've been praying with great anguish. मैं बड़े दर्द के साथ दुआ कर रही हूँ. And Eli said to her, और एली काहिन ने उससे कहा, in that case, अगर यही बात है, go in peace. सलामती से जा. And may the God of Israel grant you your request. और जो इस्राएल का खुदा है जा तेरे दिल की मुराद पूरी करेगा. If you're ever going to break cycles in your life, if there's bad cycles in your life and you can't seem to get a breakthrough,
अगर आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किल आता है और आप सोच रहे हैं कि उन मुश्किलात से निकला नहीं जाएगा, sometimes your breakthrough comes when you passionately cry out to God. लेकिन आपकी मुश्किलात से निकलने का हल ये है कि आप खुदा के आगे दुआ करें. But then after she prayed and Eli gave his word, लेकिन जब हन्ना ने दुआ की और एली का ने उसे बरकत she की, just needed one word from God. हन्ना चाहती थी कि सिर्फ से खुदा की तरफ से कोई एक लफ्ज़ या कोई बात वापस जवाब मिले. One word from God can change your life forever. खुदा की तरफ से एक लफ्ज़ भी कहा गया आपकी ज़िंदगी तब्दील. She said, give me one word from God. ने कहा खुदा से कहा कि मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ के अंदर मुझे जवाब. And Eli said, may it be unto you according to what you have prayed. और एली का उसे बरकत दी कि जा जो तूने मांगा, जो तेरी मन्नत है वो पूरी हो. And the Bible says और बाइबल ये कहती है that she replied to Eli, उसने एली का से कहा thank you, sir. शुक्रिया. And it says she went back and began to eat again. और वो वापस गई शुक्रिया अदा करके और खाने पीने. And she was no longer sad. और हन्ना अब दुखी नहीं थी. She wasn't pregnant yet, वो भी प्रेग्नेंट नहीं थी. but she changed her manner of living. लेकिन उसने अपने जिंदगी का जो तर्ज है वो चेंज किया. She changed her mindset. उसने अपना ज़हन चेंज किया, तब्दील किया. She began to feed herself again. वो खाने पीने लग गई और अपनी जिंदगी के मामूलात में. And she decided, I'm not going to be sad anymore. और उसने कहा कि अब से मैं दुखी नहीं रहूंगी. The Lord is going to grant my request. मैंने जो दुआ मांगी है खुदा उसका जवाब देगा. So we've got to learn to trust God's timing. हमें भी चाहिए कि हम खुदा की जो वक्त कार है उसके ऊपर Faith in God will change your behavior. When we have faith in God, it will change our behavior. ईमान खुदा पे होगा तो उससे हमारी जिंदगी तब्दील होंगी. She went from being depressed to being happy हन्ना जो है डिप्रेशन में थी, मुश्किल में थी, दुखी थी, लेकिन वो खुशी के अंदर तब्दील हो गई. because God had spoken to her. क्योंकि खुदा ने उससे बोला. And then as you continue reading, और जैसे हम आगे पढ़ते हैं, the Bible says बाइबल कहती है that in due time, in due time Hannah had a child. खुदा ने हन्ना को औलाद दी. At the right moment, she had her child. सही वक्त पे खुदा ने हन्ना को औलाद दी. When God does what He's going to do, I'm sorry. She gave her son to the Lord completely as He had promised. खुदा ने जो उससे वादा किया था वैसे ही किया. And the Bible tells us और बाइबल कहती है that she had more children. उसके और भी औलाद हुई. She gave her best to God. लेकिन उसने अपना जो बेहतरीन था वो खुदा को She दिया. gave the first to God, उसने अपना बेहतरीन और पहला पल खुदा को दिया. and God blessed her with more. और खुदा ने उसे और बरकत से नवाजा. And I came here today to tell you और मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ that you might be in a cycle of depression. कि आप मुश्किलात में होंगे. You might be in a cycle that seems so negative and so hard. आप ऐसी गहराइयों में होंगे जहाँ से निकलना शायद मुमकिन ना हो. You might feel like things will never change for you. आप सोचते होंगे कि शायद ये जिंदगी, ये चीजें, ये मुश्किलात कभी चेंज नहीं होंगी. But I came here today to tell you लेकिन मैं इधर आके कहता हूँ that anything can change when God's involved. कि सब कुछ तब्दील हो सकता है जब खुदा चाहे. Nothing is impossible for our God. उसके आगे कोई चीज भी जो है वो नामुमकिन है. I've watched Him do amazing things all over the world. मैं अपने आंखों से मैंने देखा है कि उसने क्या क्या अजीम काम किए. I've watched Him open blind eyes and deaf ears. उसने अंधों को आंखें दी, बहरों को बिनाई. I've watched Him heal cancer. उसने मैंने देखा कि लोगों को जिनको कैंसर था वो I've watched Him do the impossible. मैंने देखा कि जो नामुमकिन थी वो मुमकिन चीज में तब्दील I हो. came here today to tell you मैं आज इसलिए इधर आया हूँ कि आपको बता सकूं your cycle can change. ये साइकिल मुश्किलात का ये चेंज हो सकता है. Your depression can leave. मुश्किलात, दुख, परेशानियां चेंज हो सकती That pressure in your life can be gone. आपकी जिंदगी में जो भारीपन है ये भी चला जाएगा. The pattern was broken in Hannah's life. यही देखते हैं हम कि हन्ना की जिंदगी के अंदर ये चीज तब्दील हुई. God can turn your discouragements into your blessings. आपकी जिंदगी के अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं वो चेंज हो सकती हैं. Rather than being depressed about your situation, you've got to get up and go to God in prayer. हमें ये चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो हम चीज़ों पे, दुख पे, तकलीफ पे, परेशानी पे गौर करते हैं, इसको छोड़ के हम सही चीज़ की तरफ जाएं, दुआ करें. God sent me here today. आज खुदा ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा है. I want to pray a prayer for you. मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता I हूँ. want to challenge you. मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ When you go home today, कि आज जब आप घर जाएं, cry out to God. अपने दिल खुदा की तरफ लगाएं, अपने दिल Let को the लगाएं. tears flow if they have to flow. खुदा के आगे रोएं, Because God loves you. क्योंकि खुदा आप सबसे प्यार करता है. Sometimes He's just waiting on us.
लेकिन वो सिर्फ आपके लिए जो है वेट कर रहा है। Sometimes he's waiting on us to call his name. वो ये देखता है कि आप कब उसका नाम लेंगे, कब उससे दुआ करेंगे। Can I pray for you today? क्या मैं आप लोगों के लिए आज दुआ कर सकता हूँ? Father, in the mighty name of Jesus, I pray for every individual in this building. I pray that you will move upon them, Holy Spirit. I pray that you will set the captive free. I pray that you will deliver the oppressed. I pray that you'll give hope to the hopeless. I pray you'll give life to those who are looking for it. I pray you will heal people in the building today. I pray, God, thy kingdom come and thy will be done on the earth as it is in heaven. Come, Holy Spirit, and touch your people. Let them cry out to you, and as they cry out, would you meet them in a very real and a powerful way. God will give you all of the honor and all of the praise and all of the glory. Let me challenge you today. Let me challenge you today मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ that when you partake of the sacraments today, जब आप शायरबानी लेने आए, just like Hannah came every single year, जैसे हन्ना हर साल हैकल में आती थी, when you partake of the sacraments today, आज जब आप शायरबानी लें, this could be your day. आज आपका दिन हो सकता है। Today could be the day when your cycle changes. आज आपका दिन हो सकता है, आपको दुख तकलीफ जो है वो चेंज हो सकती है। So when you partake of the sacraments today, और आज जब आप शायरबानी लें, realize that Jesus loves you ये याद रखें कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, and cry out to him, और उससे दुआ करें, अपने दिल खोलें उसकी तरफ, and he will meet you. और वो आपकी हर जरूरत, हर तकलीफ को दूर करेगा, जरूरियात पूरी करेगा। God bless you. Thank you for allowing me to be here today. करता हूँ ख़ास तौर पर पास्टर जैफ के लिए एक अच्छा निजात का पैगाम उसने हमारे साथ शेयर किया है। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको रूहानी जिस्मानी बरकतों से मालामाल करे। और मैं पादरी सुशील का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि उसने बड़ा अच्छा तर्जुमा किया। घर में मैं था, मैं जब घर में था तो मैंने उसको कहा भाई तर्जुमा करेगा या फिर मैं ही करूं। तो मैं उसके लिए एक माला लाया था कि अगर इसने अच्छा तर्जुमा किया तो माला दूंगा, वरना नहीं। लेकिन उसने मेरी तवक्को से ज़्यादा अच्छा तर्जुमा किया। आस्तर ज़रा खड़ी हूँ, हम आपके लिए भी तालियां बजाना चाहते हैं। आस्तर दिलावर ये पहली दफ़ा हमारे साथ इबादत के लिए आई हैं, आप इसे वेलकम करें। थैंक यू। प्लीज़ बैठें। मैं डॉक्टर जैफ से ही दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट टू रेवरेंड सुशील इमैनुअल। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, और फिर हम अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर गुजरानेंगे। तुसी गाओ सना, ज़बूर नंबर 111। गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ खुदा के हुज़ूर गुजरानेंगे।
आसमानी बाप अपना हाथ बढ़ा, इस हदिये की तकदीस कर तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दिया। देने वालों को बरकत दे और इनके वसाइल में वसअत दे और इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल। मौजूदा हालात में हम सबको दुआ का फजल अता फरमा। इन सब के घरों में तेरा नाम हमेशा तक इज़्ज़त और जलाल पे और यह दिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रूह कुद्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आई सो एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने जलाल में बाला पर लगाओ। की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायबंड के लिए, बिशप ऑफ रायबंड के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम अदारों के लिए, पास्टर जैफ के लिए, पादी सुशील के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरी जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं। सब मिलकर कहें, आवाज़ नहीं आ रही। तेरे जलाल से खुदाम ताला तेरा जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदाम के नाम से आया है और आने वाला भी है और वाला पर रोशन। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी कुदरत से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, हम सब पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए हद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। आए मसीह तेरा इजलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक दे रहे हैं। आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ करें और मिलकर कहें, रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद, ताकि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएँ कि हमारे गुनाह गुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएं, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे।
वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे, खुदावंद यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें और कहें खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों। आप किसी को ये शर्माने अब जब कि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रमेंट में शरीक हुए हैं, तो आओ हम शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अज़ीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है, हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को, अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुज़रानते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें ये फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फर्मा बरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में
تیرے سب مقدسوں سمیت خوشی منائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو تیری اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ، کل ایمانداروں کے ساتھ، غمزدہ خاندانوں کے ساتھ، شراب زدگان کے ساتھ، جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائیں۔